All right, so good evening everyone. Today we will continue our discussion on real numbers. We had started with numbers as basic entity, numbers as basic entity we had started, and then we moved till now we are okay. We started with numbers as the basic entity. We started with the natural numbers or the counting numbers, and we moved up to real numbers. ये तो हमारी नंबर सिस्टम की जर्नी थी. उसके बाद फिर हम लोगों ने रियल नंबर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी. रियल नंबर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी. क्या क्या पढ़ा था सर? वी स्टडीड अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. We studied about Euclid's division lemma. Then we studied about division algorithm. Algorithm क्या था sir? Algorithm was the process of making anything. जैसे कि मैगी बनाने का जो process होता है, that is also called as algorithm. Why algorithm? Because it is the same process that is being followed everywhere. Then we did many questions. We did so many questions regarding the numbers, and now today what we will do. Then after that we studied the fundamental theorem of arithmetic that was used to calculate this division, that was used to calculate this HCF and LCM. These were the questions that I gave you as homework. आपका solve your check your progress नाम की जो exercise है जो आपके book में दी हुई है, उसके basis पे there were some questions that I gave you as homework. So you guys told that आप लोगों को कोई problem नहीं है, so I'm not going to discuss these questions with you guys. But I have one doubt in one of the question. Let me see where that question is. Then we discussed about Euclid's division algorithm. Then we discussed how to find HCF of two different numbers using the Euclid's division algorithm. Then we moved on further. We solved so many questions, and then what we did. Now today I'm having some doubt. A question में मुझे doubt है. So first of all, we'll start our journey with that question only. And the question is this: you guys have 30 seconds to solve this question. Tell me the answer. What will be the correct answer of this? मैंने 3,2 को mark कर दिया, but 3,2 will not be the correct answer. So you guys have to tell me the correct answer of this question, and your time starts now. 30 seconds only. Jaldi, फटाफट. What will be the answer of this question? Come on, tell me the answer, man. We discussed this type of question in the last turn also. नहीं याद आ रहा है? हेल्प करो. कोई नहीं बताएगा. आशिका, अदिति, अंशुल, कोई तो बताओ यार. हेल्प मी आउट. सौरभ, दर्श. सर मैं यस, बताइए. हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल बना लेंगे. Tell me the answer. Tell me the answer. Tell me the answer. Sir, may I? Yes, tell me the answer. Sir, option C. Option number C. Your good name? Sahil. Sahil. Okay, good Sahil. See, Saurav also told I hope the boy who said spoke before Sahil, his name was Saurav. अगर नहीं भी हो तो adjust कर लेना. See, Saurav gave the correct procedure, but I don't want the procedure, man. I want the answer. सीधी सी बात है यार, आंसर बताओ. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. वी डिस्कस्ड सिमिलर क्वेश्चन आल्सो इन द लास्ट टर्न. सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. First of all, I need to calculate the HCF of the two numbers, that is 65 and 117. अब ये मुझे पता है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF होता है वो 13 होता है. ठीक है. Remember this is an objective question. You are not supposed to write anything while solving this question. मैं आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से करवाना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप यू सी एंड मार्क एंड गो. तो 65 और 117 का जो एलसीएम होता है सर, वो एचसीएफ जो होता है वो 13 होता है. कैसे? 13 5 65 एंड 13 9 117. सो द एचसीएफ इज 13. पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज डन. दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? द एचसीएफ इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म.
So HCF is written as 65 into M plus 117 multiplied by N. HCF is written as 65 into M plus 117 multiplied by N. Now I have to find the value of M and N to express this 13 in terms of 65 M plus 1117 N. अब मुझे M और N की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है. Now I am having two options. What I will do is I'll go with the options. I'll check the options and I'll mark the answer and I'll move ahead. अब देखो, ये 65 एक पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर मींस ग्रेटर देन 0. ये जो 117 है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, मींस ग्रेटर देन 0. दो पॉजिटिव नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, अगर आप इन नंबर्स को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, so in this case the result can never be 30, the result can never be 13, क्योंकि आप इस नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. even if you are multiplying, even if you are taking M and N as 1, then the value will be 117 plus 65, which is equal to 182. Come on. So question option number A is just an absurd answer. So by looking at the option, simply by looking at the option, you can say that my option number A will not be my answer. अब बचता क्या है, बाकी के options बचते हैं, एक एक करके check कर लो जल्दी से. अब यहाँ पे आपकी वही चीज का काम में आने वाली है, that is called as the skill of addition and the skill of subtraction. अब देखो, I will go to option number B. Option number B will be 195 minus 117. That is not equal to 13. मुझे नहीं मतलब है कितना होगा मुझे नहीं मतलब. I'm not at all concerned. But one thing I know, that if I'm taking M equal to 3 and N equal to 1, it will never be my answer. So option number B is also rejected. Now I will go to option number D. मुझे पता है option number C is the answer, but मान लो C की जगह D लिखा होता है, D की जगह C लिखा होता है. Just want to show you how much time it's going to take. So 65 into 2 is 130 and 117 into 3 is 351. Come on यार, हो ही नहीं सकता. वैसे भी देखो ना, इन दोनों नंबर्स को देखो, एक 2 है एक -3 है, और ये जो 117 है that is almost 2 times of 65. तो ये कॉम्बिनेशन तो कभी काम ही नहीं करेगा. हमेशा for this combination to work, the value of M should be greater than N, and the value of M should be positive and the value of N should be negative. Then only it will work. ठीक है. तो यहाँ पे ये तो काम करने वाला नहीं है, क्योंकि 65 into 2 130 minus 351, forget it, it is never going to become 13. तो जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर C, that will be my answer. चेक कर लो, this is 130 minus 1117, which is equal to 13. One more thing, there is one more method of solving this question that we discussed in the last turn, but when this question comes in objective, we are not supposed to do by that method. We are not supposed to do by that method, because that will result in wastage of time. And something which is most precious in our exam is our time. So we are not going to do like that. We are not going to waste our single minute in solving the questions like this. I have to mark the answer. Nobody is going to see how much rough work I have done. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Then we discussed about fundamental theorem of arithmetic. Then we discussed some of the questions. Okay. फिर ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number or not. We discussed this question. Then we also discussed this morning walk wala question. Now I am having this question. Tell me the answer of this question. Your time starts now. The time starts now. What is the maximum length of the measuring stick that should be used to measure both the lengths? And here one more thing should be there, that it is used to measure both the lengths completely. मतलब number of times I am measuring, that should be complete. Although नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं. चलिए, time has already started. Please tell me the answer.
सर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, ओके। डिफरेंट आंसर। देखो मुझे उस स्केल की लेंथ निकालनी है जो कि दोनों लेंथ्स को मेजर कर पाए, तो द मिनिमम लेंथ ऑफ दैट स्केल इज रिक्वायर्ड। अब इसमें यहाँ पे ये लॉजिक 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना है कि 20 सेंटीमीटर को मैं 100 सेंटीमीटर के स्केल से भी तो मेजर कर सकता हूँ। दिस लॉजिक इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। Saurabh, the logic that you gave is not going to work here. The correct answer of this question will be 20 centimeter. What I want to say you is, you are not supposed to use this logic here that I can measure 100 centimeter. I can measure 100 centimeter from a scale of 120 centimeter also. So that will not be the case here. सर तो But maximum length of what is the maximum length of the measuring stick that should be used to measure both the lengths? See here, both the answers are possible. Here 80 centimeter is also possible. Here 20 centimeter is also possible. यहाँ पे दोनों आंसर्स पॉसिबल है। 80 सेंटीमीटर इज ऑल्सो पॉसिबल एंड 20 सेंटीमीटर इज ऑल्सो पॉसिबल, बट वी विल गो विद द आंसर ऑफ 20 सेंटीमीटर ओनली। ओके, विल गो विद दिस आंसर। किया क्या हमने सर? व्हाट आई हैव डन हियर, जो हमारी रोप की लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है। आई वांट टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 3:4 के लेंथ में डिवाइड किया है मैंने। तो एक पार्ट की लेंथ जो होगी, पार्ट 1 की जो लेंथ होगी दैट विल बी 60 सेंटीमीटर, और पार्ट 2 की जो लेंथ होगी दैट विल बी 80 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई एम हैविंग ए स्केल ऑफ 80 सेंटीमीटर, if I'm having a scale of 80 centimeter that can measure both the lengths. So in this way the correct answer should be 80. But here by logic if I'm going, then I have to calculate that length of scale जो कि इसको भी measure कर ले और इसको भी measure कर ले। I agree this 80 centimeter is also correct. But what we will be doing is we will be calculating the HCF of 60 and 80, and then we will get the length as 20. So I guess there is something missing in this question. This question seems to be incomplete, but yes for sir. the time being, whatever we have in this question, because this is what the question I also got. So for the time being, whatever data we have in this question, both the answers are acceptable. 80 centimeter is also acceptable and 20 centimeter is also acceptable. Okay? So it's better we should not focus, we should not spend more time on this. We should go to the next question. Chaliye. There is an oval shaped park. Please solve this question and tell me. There is no time limit. You can take your time and you can solve the question. I want to know why you have calculated HCF and why you have calculated LCM. That is what I want to know. So let me start with Mr. Parmar. Parmar ji, आप बताइए why you are calculating HCF. परमार साहब, HCF क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये बताइए। HCF आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर 4 आएगा, ये मेरे से ही ले लो। चलो अब बताओ HCF क्यों कैलकुलेट किया ये बताओ। सर क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कितनी देर में वापस मिलेंगे, तो शायद से HCF ही कर सकते हैं, मतलब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी। और जिन लोगों ने HCF किया है वो बताएंगे मेरे को जरा HCF क्यों लिया है। जिन लोगों ने भी HCF किया है क्या वो मुझे बता सकते हैं कि HCF क्यों लिया है? नहीं बताओगे, चलो सर। बताइए। सर क्योंकि इसमें मतलब दिया हुआ है कि एक पॉइंट से दोनों ने एक साथ चालू किया है राउंड लगाना, और इसमें दिया हुआ है कि बाबू 16 मिनट्स में लगाता है और राजू 20 मिनट्स में। मतलब राजू की स्पीड कम है और बाबू की ज्यादा है। तो इसका मतलब ये लोग वो पूछ रहे हैं कि जब वो लोग एक साथ तो स्टार्ट करेंगे लेकिन वो लोग आगे पीछे रहेंगे, मतलब एक साथ दौड़ेंगे नहीं। तो वो लोग ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, मतलब कितने मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ऐसे किस मिनट पे पॉइंट आएगा
जब लोग एक साथ मतलब वो फिर से एक साथ हो जाएंगे, हम्म। तो इसीलिए सर HCF ढूंढ मतलब अच्छा एक HCF बात बताओ, ठीक निकालेंगे। है, आपने पूरा क्वेश्चन सही समझा। अब चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके फ्रेंड ने क्या कहा कि ये पॉइंट पी है, यहाँ से दो दोस्तों ने, बाबू और राजू ने स्टार्ट किया। बाबू को लगते हैं 16 मिनट कंप्लीट करने में और राजू को लगते हैं 20 मिनट कंप्लीट करने में। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने एकदम सही कहा कि जो बाबू की स्पीड है वो ज्यादा है और राजू की स्पीड कम है। यहां तक बात एकदम सही है, करेक्ट, परफेक्टली ऑल राइट। अब आगे सुनो, आगे सवाल क्या बोलता है। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, t इक्वल टू 0 पे इन लोगों ने स्टार्ट किया, तो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों लोग दोबारा कब मिलेंगे, मुझसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलो आपके हिसाब से मैं क्वेश्चन को पहले करके आपको बताना चाहता हूं कि t इक्वल टू 4 पे पोजीशन क्या होगी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने t इक्वल टू 4 मिनट्स आंसर दिया था, दिस डिस्कशन इज फॉर देम। सपोज करो इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है। भाई हम ये जो बंदे दोनों दौड़ेंगे वो ट्रैक के अलोंग ही दौड़ेंगे, ट्रैक के सरकमफ्रेंस के अलोंग दौड़ेंगे। तो मान लो पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है। ठीक है सर, तो ये जो अब तक बाबू है, बाबू की जो स्पीड हुई वो हो गई L अपॉन 16। बाबू की जो वो स्पीड हुई वो हो गई L अपॉन 16 और राजू की जो स्पीड हुई वो हो गई L अपॉन 20। ये दोनों की स्पीड है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 4 मिनट्स, यू गाइज आर सेइंग दैट आफ्टर 4 मिनट्स दे विल मीट। तो 4 मिनट के बाद पोजीशन पता कर लेते हैं, दोनों की पोजीशन क्या है। अगर दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम आ गया तो फिर हमारा आंसर सही है। 4 मिनट के बाद एट t इक्वल टू 4, मान लो दिस इज t इक्वल टू 4, बाबू जो होगा उससे डिस्टेंस कवर किया होगा L बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू L बाई 4, राइट? बाबू ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो बाबू ने कवर किया होगा L बाई 4 और राजू ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा मेरे दोस्त वो कवर किया होगा L बाई 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू L बाई 5. Now these two distances are not same, my dear friend. So t equal to 4 is not the correct answer. पहली चीज, that is why हम HCF नहीं लेंगे। यहाँ पे अब सवाल को समझो फिर से। एक बंदे को लग रहे हैं 16 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने में, दूसरे को लग रहे हैं 20 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने में, दोनों ने एक साथ चालू किया। तो अब यहाँ पे अपन बाबू लिखते हैं, यहाँ पे हम राजू लिखते हैं, यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं, दिस इज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। ठीक है, इसके आगे की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे क्या होता है। बाबू को 1 मिनट, पहला राउंड कंप्लीट करने में बाबू को लगे 16 मिनट, दूसरा राउंड कंप्लीट करने में 32 मिनट लगेंगे, तीसरा राउंड देखो, the question is saying that they will again meet at point P. This means that they should meet at the starting point. They should meet at starting point. आप लोगों का जो लॉजिक था वो वैसे तो इनकरेक्ट था, लेकिन शायद वो करेक्ट हो सकता था अगर आप इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते तो दे आर सेइंग दैट दे शुड मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब राउंड कंप्लीट कर लिया, राउंड कंप्लीट करने के बाद इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो बाबू ने जब चालू किया तो उसने t इक्वल टू 0 पे चालू किया था, t इक्वल टू 16 पे उसका एक t इक्वल टू 16 पे वो वापस से पॉइंट P पे आएगा, फिर वो वापस से पॉइंट P पे t इक्वल टू 32 पे आएगा, फिर वापस से पॉइंट P पे t इक्वल टू 48 पे आएगा, फिर वापस से पॉइंट P पे t इक्वल टू 64 पे आएगा, फिर वापस से पॉइंट P पे t इक्वल टू 80 पे आएगा। If I am talking about राजू ने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो t इक्वल टू 20 पे 20 मिनट के बाद वो पॉइंट P पे आया, फिर 40 मिनट के बाद पॉइंट P पे आया, फिर 60 मिनट के बाद पॉइंट P पे आया, फिर 80 मिनट के बाद पॉइंट P पे आया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 80 मिनट के बाद ये दोनों लोग पॉइंट P पे फिर से मिलेंगे। बात समझ में आई?
Those who are giving the answer as HCF, 80 मिनट के बाद ये दोनों लोग पॉइंट पी पे मिलेंगे और ये 80 क्या है? This 80 is nothing but LCM of 16 and 20. So basically in this question what I have to calculate? I have to calculate LCM of 16 and 20. अब ये LCM हमें बचपन वाले मेथड से नहीं निकालना है, पहले ही बता दे रहा हूं इस बात को. ये LCM हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकालना है. कैसे सर? 2 raised to the power 4 into 5, this is 2 raised to the power 2 into 5. LCM क्या होगा? 2 raised to the power 2 into 5, which is nothing but 20. अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, मेरी बात को याद रखना. जो बचपन वाला तरीका था एलसीएम निकालने का, उस तरीके को भूल जाओ. फ्लश इट, डिलीट इट, फॉरगेट इट. यहां पे उस तरीके से सवाल करोगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा. There were many students in this 10th standard that just passed, that has just completed its course. उनका क्या था? They were brilliant. बहुत अच्छे लॉजिक्स थे and I wish them a great future ahead. But what the problem with them was, थोड़ी-थोड़ी चीजों में मिस्टेक करते थे. That is why even if I wanted to give them full marks, I was forced to deduct their marks because they used to do some small mistakes. Suppose करो ये क्वेश्चन आपके पास आया, आपने एलसीएम भी निकाल दिया, लेकिन आपने एलसीएम पुराने तरीके से निकाल दिया. पुराना तरीका कौन था? यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे 8 लिखा, फिर यहाँ पे 10 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 5 लिखा, ऐसे करके किया. I'm not going to give you a single marks. I'll deduct your marks. ठीक है? इस तरीके से मत करना. You are supposed to apply fundamental theorem of arithmetic, then only you are supposed to calculate the LCM. I hope I am clear. चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? क्यों LCM लिया था, क्यों HCF नहीं लिया था? I have explained you both the methods कि HCF लेने पे जो आपका आंसर 4 आ रहा था, 4 पे दोनों की पोजीशन क्या होगी. और then I have also shown you that if I'm taking LCM, in that case what will happen. I hope the question is clear to everyone, right? So आगे बढ़े. चलिए इस सवाल को कीजिए. Again your time has started and you have just जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन सवाल को करके बताओ. गलत मत करना है ना. सवाल करके बताओ क्या होगा आंसर. हो गया? सर 252. 252 आंसर आ गया. क्या है आंसर? 2521. 2521. Anybody who is getting Yes, sir. anybody who is getting a different answer? No, nobody is getting a different No, answer. sir, 2521. Sir, हाँ, I'm बोलो. getting C. सर हाँ बोलो बेटा. अरे Sir, I'm सर getting वो C. Option C. You are getting C option. Okay. हाँ दर्श बोलिए क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं सर, वो फोन का स्पीकर होता है ना ऊपर वाला जिसमें से आवाज आता है, उसमें से आवाज आने लगा था अचानक से, इसीलिए. भाई किसी को पता हो तो उसे बता दो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं समझ में. नहीं सर ठीक हो गया अब. ठीक है चलो. देखो यहाँ क्या करना है. यू आर गेटिंग सी. सो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ यू ट्राइड, हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. Perhaps you are doing some mistake in calculation. Just see the calculation. Okay. देखो इस क्वेश्चन में
करने सर का आंसर एक सी भी हो सकता है लेकिन वो लीस्ट नंबर नहीं वो होगा। लिस्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है दोस्त। वो कोई तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक लॉजिक है। सपोज सर करो मेरा ऑप्शन तो बी आया। सपोज करो आई एम बीइंग आस्क्ड कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the number which when divided by say 2 and 5 leaves remainder as 3। क्या पूछा गया सुनो, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। फाइंड द नंबर which when divided by 2 and 5 leaves remainder 3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वो जो नंबर है, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है से x, this x is a multiple of 2 as well as this x is a multiple of 5. This gives me that this x is a multiple of 10. This x is a multiple of 2 and this x is a multiple of 5. This gives me x is a multiple of 10. Now what is happening कि जब मैं इस नंबर को 2 और 5 से डिवाइड कर रहा हूं, when this number is divided by both 2 and 5, I am getting the remainder as 3. So this number will be of the form of k into 10 plus 3. ये जो नंबर होगा ये इस तरीके से होगा k into 10 plus 3, where k is a natural number, k belongs to n. यहाँ पे आप जैसे जैसे k की वैल्यूज रखते जाओगे यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अगर मिनिमम नंबर पूछा है, अगर लीस्ट नंबर पूछा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू 1 रख देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 and 10 लीव्स रिमाइंडर 1। तो सबसे पहले मैं 6, 7, 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम ऑफ नाउ 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, 7 can be written as 7, 8 can be written as 2 raised to the power 3, 9 can be written as 3 raised to the power 2, 10 can be written as 2 into 5। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर होता है, हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर को उठा लेते हैं और जो प्राइम फैक्टर जो कॉमन नहीं होते उनकी वही वाली पावर को उठा लेते हैं। तो ये हो गया 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 7। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज 2520। यू कैन चेक 8 9s are 72, 72 5s are 360, 360 into 7 will be equal to 2520। अब बचा क्या, 2520 में इट इज सिंस इट इज लीविंग रिमाइंडर 1, तो जब भी मैं इस नंबर, तो लीविंग रिमाइंडर 1 मतलब 2, तो दिस नंबर, दिस सीरीज ऑफ नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2520 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। सिंस मुझसे मिनिमम नंबर पूछा है तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n एज इक्वल टू 1 एंड माय नंबर विल बी 2521। what your friend did, perhaps she did a mistake in calculating the LCM, that is why she got the LCM as 5040. She got the LCM as 5040, then she added 1 and she got the answer as 5041. In fact, it should be 2520 plus 1, which is equal to 2521. So my dear friends, 2521 will be the correct answer of this question. आगे बढ़े? यस सर। चलिए, this question, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 448, 1008 and 168 by using fundamental theorem of arithmetic. I'm not solving this question you can do on your own, क्योंकि simply हमको factorize करना है and then I have to give the result, so I'm not solving this question. Shall I leave this question to all of you? कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, now this question,
Read this question carefully and tell me the answer of this question, because in the previous class I got some very interesting answers of this question. You guys are too good. आप लोग बहुत अच्छे हो. This shows your upbringing has been brilliant. You guys are too good. बहुत प्यारे answers मिलते हैं. And many a time, I as a teacher with 3-4 years of experience, I get confused. चलो, करो इस question को and tell me what will be the answer. Your time starts now. Sir, done. Okay, let me wait for others. Let me wait for others. Done. Done. What is the answer? Sir, 16 by 16 feet. 16 by 16 feet. Okay. You have to tell me the So you are saying that the size of the tile should be 16 feet. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir, sure. Sir, Okay. 4 by 4 feet. And how many such tiles would be required? Sir, 5 5. tile. Sir, 16 by 16 के 5 चाहिए होंगे. 16 by 16 के Sorry, पाँच- sir. I mean 4 by 4 के 5 चाहिए होंगे. 4 by 4 के 5 चाहिए होंगे. अच्छा. Okay. अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप 4 by 4 का टाइल होगा. अगर आप 4 by 4 का टाइल लेते हो तो आप इसको लेंथ के लॉन्ग फिट कर पाओगे? इसकी ब्रेड्थ के लॉन्ग फिट कर पाओगे? 10 फीट का ब्रेड्थ है तो क्या आप इस 4 by 4 को फिट कर पाओगे? जरा सोच के बताना. अगर 4 by 4 का टाइल लेते हो तो क्या आप इसको ब्रेड्थ के लॉन्ग फिट कर पाओगे? माय क्वेश्चन इज दिस. No, sir. नो सर. सर मेरा एक अलग आंसर आ रहा है. क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर 8 by 5 8 by 5. ओके. के 2 टाइल्स. नहीं बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि द टाइल हैज टू बी स्क्वायर मार्बल टाइल्स, है ना? तो 8 by 5 तो ये तो स्क्वायर नहीं हुआ. हाँ सर, तब तो 2 by 2 का है. सर मुझे लगा कि सर मैंने ध्यान नहीं दिया कि सर 10 फीट का ही हो. सर मुझे लगा कि सबसे ज्यादा साइज का कौन सा होना चाहिए. तो सर मैंने सर क्या किया कि सर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि जिसका प्रोडक्ट 80 हो. तो सर मैंने ध्यान में नहीं रखा कि सर ब्रेथ 10 फीट में आना चाहिए. सर फिर मैंने किया कि 10 फीट और 8 फीट का प्रोडक्ट 80 फीट स्क्वायर होता है. तो सर मैंने क्या किया कि 20 फीट और 4 फीट का भी 80 फीट स्क्वायर ही होता है. तो सर ऐसा करके मैंने This is what I said in the beginning also. This is what I said in the ध्यान में beginning नहीं दिया कि also. वो सर 10 फीट में आना चाहिए. You guys give very interesting answers. This is what happened in the previous class also. Same चीज, same reply, same logic. मुझे तो 1 मिनट के लिए डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि the same person is attending the class at both the places. देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ सिचुएशन क्या है. दिस इज नॉट अ यूजुअल सिचुएशन. अगर मुझसे ये पूछा हो जाता कि मेरे पास एक 80 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें मुझे लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल को बिठाना है, देन योर आंसर वुड हैव बीन करेक्ट. दैट सर 4 फीट इंटू 4 फीट की एक टाइल बैठा दो और देयर विल बी 5 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड.
then your answer would have been absolutely correct. I have no doubt. But the problem here is, my dear friend, here the length is 8. Okay, length breadth I always get confused, so just adjust kar lo. The length is 8 and the breadth is 10. अगर आप 4 फीट की टाइल को बैठाते हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको 2.5 टाइल्स रखनी पड़ेगी. लेंथ के लॉन्ग तो आपकी 2 टाइल्स काम चल जाएगा, लेकिन ब्रेड्थ के लॉन्ग आपको 2.5 टाइल्स रखनी पड़ेगी. दैट इज नॉट अलाउड. You are not supposed to cut the tiles. So first of all, in order to calculate the length of the tile, the dimension of the tile, the length of the tile will be, length of tile will be HCF of 8,10. अब HCF of 8,10 जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो, लेमा यूज करके निकाल लो या फैक्टराइज करके निकाल लो. इट विल कम आउट टू बी 2. अब जो हमारी टाइल की जो लेंथ है वो 2 फीट या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब सिचुएशन क्या हो रही है, ऐसी टाइल्स हैं तो लेंथ के अलोंग देयर विल बी 4 टाइल्स, breadth के along there will be 10 into 5 which is equal to 5 tiles. So in totality 1 2 3 4 5, in totality there will be total of 20 tiles. In totality there will be total 20 tiles. So total tiles will be 5 into 4 which is nothing but 20. यहाँ पे कुछ लोग आंसर 5 plus 4 भी देते हैं, कुछ लोग आंसर 5 plus 4 भी देते हैं, तो 5 plus 4 नहीं होगा. दिस सिचुएशन इज जस्ट लाइक सिमिलर टू, आपके पास एक ब्लॉक है, एक इस तरीके का ब्लॉक है जिसमें कॉलम में देयर आर से 1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड इन रोज देयर आर, कितने हो गए, 1 2 3 4 रोज हो गए. तो नाउ यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स. आपको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं. सो द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी 1 2 3 4 5 into 4 which is equal to 20. The correct, if this question comes in objective, एक ऑप्शन आपको 20 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको 9 भी मिल सकता है. बी वेरी केयरफुल विद दिस. Be very careful with this. You can also get one answer as 9. So the correct answer of this question will not be 9. Rather the correct, एक मिनट बेटा, एक मिनट. Rather the correct answer of this question will be 20. हाँ पूछिए, क्या डाउट है सर? एक 8 by 10 फीट का सर एक टाइल नहीं हो सकता? That is not square. Oh yes sir, sorry sir, कुछ नहीं. That is not square. आपके आपकी फ्रेंड ने भी यही चीज बोली थी. उन्होंने शायद बोला था कुछ 8 by 2. I don't know. I guess if that girl is here, तो वो एक बार अपना आंसर बताएं मेरे को, क्या उन्होंने आंसर दिया था. उसने शायद 4 by 5 ऐसा करके 8 by 5 करके इन्होंने एक आंसर दिया था. Now my dear friend, that answer is not acceptable because it is not square. क्वेश्चन में देखिए व्हाट आई एम बीइंग आस्क्ड. आई एम बीइंग आस्क्ड स्क्वायर. अगर रेक्टेंगल होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता यार. रेक्टेंगल होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता ना. बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं. यस सर. ओके, तो द क्वेश्चंस के मामले में अभी तक की कहानी इतनी ही थी. ठीक है, क्वेश्चंस इतने ही है हमारे पास फिलहाल. तो आपका होमवर्क ये है कि आपको डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करके लाना है. ठीक है, आपको डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करके लाना है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, बट जो भी क्वेश्चन बचता है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्न. तो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, जो बातें हम भूल जाते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए. देन वी विल स्टडी हाउ टू प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज ए इरेशनल नंबर और नॉट. सो लेट अस सी फ्रॉम टिल वेयर वी कैन कंटिन्यू दिस. Let P be a prime number and A be a positive integer. Let P be a prime number and A be a positive integer. If P divides A square,
then P also divides A. कहने का मतलब क्या है? Now this result is very important. We will use this result. P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है. A मान लो 6, A को मान लो 6, A is 6 and P is say 2. A is 6 and P is 2. If P divides A square, तो A square क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36. तो ये जो 36 है ये 2 से डिविजिबल है. द रिजल्ट इज, द क्वोशिएंट इज 18 and the remainder is this 0. Then this result says that if P divides A square, then this P will also divide A. अगर ये P A square को divide कर रहा है, अगर if 2 is dividing 36, then 2 will also divide 80. Then 2 will also divide 6. If P is dividing the A square, then P will also divide A. This is the first result. The next result is, let X be a rational number whose decimal expansion terminates. Let X be a rational number whose decimal expansion terminates. Terminates matlab after some 3, 4, 5 places of decimal, I am getting the remainder as 0. Then X can be represented in the form P by Q, where P and Q are co-primes and prime factorization of Q is of the form of 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n. This is what we had discussed earlier also, कि कोई भी fraction, कोई भी prime number, कोई भी rational number जिसका denominator, if it is of the form of 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, then this will definitely have a terminating decimal representation. Next, let P upon Q is a rational number such that the prime factorization of Q is not of the form of 2 raised to the power m multiplied by P raised to the power n. अब सर हो सकता है कि एक केस तो आपने बोल दिया कि ये इसके फॉर्म का है, लेकिन मान लीजिए अगर इसके फॉर्म का नहीं हुआ तो क्या होगा? In that case, what will happen that X will have a decimal expansion which is non-terminating and repeating. उस केस में क्या होगा कि X का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना सर, वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. सो नाउ हम लोग कई टाइप की नंबर्स पढ़ चुके हैं. रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दिस इरेशनल नंबर्स. ये सारे के सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं. इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर. आज चौथी क्लास है इस चैप्टर की. दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर. Okay, in this chapter we shall study about properties of some number which are valid for integers also. चलिए आगे पढ़ते हैं properties. Today is the third lecture or the fourth lecture of today is the third lecture or the fourth lecture of this topic? Fourth ना. चलो अब एक सवाल है आपके सामने, आपके समक्ष एक सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. जरा इस सवाल को सॉल्व कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. फोन फ्रेंड नहीं कर सकते आप सॉल्व करके मुझे एलसीएम बताइए जल्दी से. If two positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q is equal to a square b, a and b being prime numbers, then you have to tell me the LCM of p and q. आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो क्या होगा एलसीएम. सर a cube b square. A cube b square. The LCM of a and b, the LCM of p and q will be equal to a cube b square. कैसे सर, कैसे कर दिया इतनी जल्दी? हमने पढ़ा था जब हमारे पास नंबर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लिखने के लिए हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को उठा लेते हैं. हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को उठा लेते हैं. तो a की सबसे बड़ी पावर क्या है? a क्यूब. b की सबसे बड़ी पावर क्या है? b स्क्वायर. तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, मेरा एलसीएम क्या हो गया? a क्यूब इंटू b स्क्वायर. खत्म.
ज्यादा सोचना ही नहीं है। थोड़ा जो और सोचना चाहते हैं वो ऐसे सोच सकते हैं कि सर अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या होगा भाई इन दोनों नंबर्स का? A into B, AB। HCF will be A into B। So एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, आपने पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड होल्डिंग माय ईयर लाइक दिस। मैं अपने कान को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ रहा हूं। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू इन दिस मेथड। एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF। सो LCM विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब इंटू B डिवाइडेड बाय A इंटू B। तो इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मिला क्या? A क्यूब इंटू B स्क्वायर। सो दिस विल बी माय LCM। समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड होल्डिंग माय ईयर लाइक दिस, नॉट होल्डिंग माय ईयर लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं सो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारी चीजें LCM प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखी है, तो डायरेक्टली देख के लिख सकते हो, या देख के नहीं लिखना आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF से कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई this number 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. I will deal with this proof of irrationality in the next class because that is the last topic. वो अब इतने छोटे से टाइम में 10 मिनट में अपन वो डिस्कस नहीं कर सकते, तो I will discuss it in the next class. So till then we are solving some of the questions. चलिए बताइए what will happen in this question. सर मैं Okay, you want to tell? चलिए बताइए ना, वेट कीजिए, लेट अदर्स डू, लेट अदर्स डू। एनीबडी एल्स? देखो सवाल को देख के घबराओ मत, सवाल को देख के घबराओ मत, प्लीज मेरी बात समझो। जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी उस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पे जाओ। कंपोजिट नंबर क्या बताया था? एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 1 भी हो, वो नंबर भी हो, इसके अलावा भी कुछ हो। आई थिंक दिस मच ऑफ हिंट इज इनफ। दर्श, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं सर। अरे आंसर नहीं आया ये पूछ रहा हूं, प्रूफ नहीं हुआ क्या? नहीं सर, हो गया ना। बताओ कैसे किया? सर ये तो सर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो कंपोजिट ही आएगा। वैसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो कंपोजिट कैसे आएगा भाई? सर मतलब देखो सर, ये सारे नंबर को सिंपलीफाई कर दिया 15 और 105 प्लस 7 112 आया। हाँ सर। हाँ तो आगे? फिर 112 सर 112 और उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही नहीं होते, उसका एक 2 भी फैक्टर हो सकता है और फिर मतलब अच्छा, 2 से ठीक है। ज्यादा हो सकते हैं। चलो फिर अगर वो मैं तुमको composite ये है। सवाल दूं, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए प्राइम कंपोजिट नंबर, नाउ व्हाट यू विल से? सर कैसा? ये जो सवाल दिया है एक्सप्लेन व्हाई 1001 इज ए कंपोजिट नंबर, अब क्या करोगे बताओ? सर इसका भी 11 स्क्वायर हो जाता है ना। 11 स्क्वायर 1001 होता है? नहीं सर, नहीं 1001 नहीं। एक मिनट सर, तुम सोचो, हाँ, तब तक कैसे मैं बाकियों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपके फ्रेंड ने जो बोला, आपके फ्रेंड ने ऑलमोस्ट सही बात बोली है, बट इसके रिजल्ट को मैं बोलूं? थोड़ा, हाँ बोलो, चलो बोलो। सर हमें ये तो पता ही है कि ये जो 3 into 5 into 7 जो ये नंबर है सर, उसके 3 ये होंगे 1, और वो उस नंबर को खुद को छोड़ के 3 फैक्टर होंगे जो है 3, 5, 7। और सर जो कैसे 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 3, 5 और 7 कैसे फैक्टर हो जाएंगे? 3 into 5 into 7 plus 7 लिखा हुआ है बेटा। सर मैं सिर्फ इतने इस नंबर का बोल रहा हूँ सर, 3 into 5 into 7 ठीक है, प्लस ठीक को है, अभी देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलो, सर। हाँ। फिर
इधर हमने +7 किया है और सर 7 जो है वो 7 का एक वो फैक्टर है, 7 खुद 7 का फैक्टर है। तो सर अब ये जो पहला नंबर है सर वो भी 7 का फैक्टर है, और अगर हम 7 के फैक्टर में 7 ऐड करेंगे तो जो सर रिजल्टेंट आएगा वो भी 7 का फैक्टर होगा। 7 का फैक्टर आएगा, ठीक है। आई मीन सर वो जो नंबर आएगा उसका फैक्टर 7 होगा। ठीक है, फिर भी यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार। सर मैं हाँ बताइए सर। फर्स्ट विल टेक आउट द कॉमन एज 7 सर sir, then it will in be form of 3 into 5 into cube as we can take ठीक है sir, चलो ठीक है। देखो सर देखो एक और सवाल, सर, हाँ सर, बोलो सर, बोलो 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 बोलो। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि सर जो 5 into 3 है सर हम उसको n मान सकते हैं। ओके सर, फिर n मान लिया तो सर वो जो 3 into 5 into 7 है सर वो हो गया 7n + 7। तो फिर हम सर उसमें से 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो सर 7 into n + 1। तो सर अब इस नंबर के 2 फैक्टर हो गए, एक 7 और एक n + 1। तो सर हो गया सर। वही तो पूछ रहा था ना मैं, वही तो मैं पूछ रहा था इतनी देर से। देखो ये जो नंबर है, देखो समझो कंपोजिट नंबर क्या होता था। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता था सर जिसका 1 एक फैक्टर हो, वो नंबर खुद एक फैक्टर हो, इसके अलावा कोई और एक फैक्टर हो। तो मुझे बस कोई और फैक्टर ढूंढना है, कोई और एक फैक्टर ढूंढना है, वो कहीं से भी मिल जाए मुझे, मेरा काम बन जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 3 into 5 into 7 है, +7 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 7 कॉमन ले सकता हूं। मैंने 7 कॉमन ले लिया तो फाइनली आई एम हैविंग 3 into 5 + 1। फाइनली आई एम हैविंग 3 into 5 + 1। तो ये नंबर जो भी होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे पता है ये नंबर 112 आ रहा है। लेकिन ये जो भी नंबर होगा, इस नंबर के 2 फैक्टर्स तो मुझे और यहाँ पे मिल रहे हैं। एक फैक्टर मुझे मिल रहा है 7, दूसरा फैक्टर मुझे मिल रहा है 16। मुझे ऑलरेडी 2 फैक्टर्स और मिल रहे हैं, प्लस एक और फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, प्लस जो ये जो नंबर है 112 वो तो इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। So from here I can say that I am having 2 more factors of this number. I'm not saying that this number will have only 4 factors. This number will have more factors, but what I can say that I got 2 additional factors of this number. That is why, my dear friends, this number is not a prime number, rather this number is a composite number. I hope my point is clear. हमने यहाँ पे ये 7 मुझे यहाँ दिखा, ये 7 मुझे यहाँ दिखा, मैंने 7 को कॉमन ले लिया बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कॉमन लिया तो यहाँ मुझे 7 मिला, यहाँ मुझे 3 into 5 + 1 मिला। 3 into 5 + 1 is 16 और यहाँ पे आ गया 7। तो भाई ये जो भी नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। आई एम नॉट दैट इनफ, आई एम नॉट दैट गुड इनफ इन मैथमेटिक्स। तो ये जो भी नंबर होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इस नंबर के 2 फैक्टर्स तो मुझे दिख रहे हैं। एक फैक्टर हो गया 7, एक फैक्टर हो गया 16। उसके अलावा 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और एक ये जो नंबर है 16 into 7 ये भी फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था एवरी नंबर इज a factor of itself and 1 is the factor of every number. So basically I can see here that I am having 4 factors. तो अगर 4 factors हो गए तो इसको कब, हाँ बोलिए। Sir, I did it the another way. How you did? Tell me. Sir, first of all, 3 5s are 15 and 7 plus 7 is 14. So 4 into 5 is 20. So now if we get any number ending with 0, then 2 and 5 are the factors. Also 1 will be the factor. एक मिनट मैं नहीं समझ पाया, आपने क्या किया बेटा, एक बार फिर से बताएंगे। Sir, 3 into 5 is 15 and 7 plus 7 is 14. No, so no, no. एक मिनट हाँ, if we multiply, okay, what you are saying, if we multiply the last digits that are 4 and 5, then we will get 20. Now the number is no my dear, but tell me one thing, how you are doing this 3 into 5 multiplied by 7 plus 7, how you are doing this? This is not this is written as 3 into 5 into 7 plus 7. So using the rules of BODMAS, first of all you have to multiply the 3 numbers, that is 3 into 5 into 7. Yes, sir. That is the mistake that you did, that you are doing, right? I hope I'm clear.
This is a mistake that you are doing. So the question will be solved like this. Now your homework is DPP number 1 and DPP number 2. इसके अलावा ये एक सवाल है, चलो ये एक लास्ट सवाल है, ये हम लोगों को करना है, जल्दी से कर लो, फिर अपन वाइंड अप करते हैं सेशन को. यू हैव टू, हाँ ठीक है, आपने कर लिया. बाकी टेल मी द आंसर ऑफ दिस. सर मैंने भी कर लिया. हाँ डी. इसका जो आंसर होगा वो डी होगा. ए रेज, because this is of the form of a raised to the power m divided by a raised to the power n, which is nothing but a raised to the power m minus n. So a raised to the power m minus n will be 200 minus 2, which is equal to a raised to the power 200 minus 1, I'm sorry, which will be equal to a raised to the power 199, which is nothing but 2 raised to the power 199. So the correct answer of this question will be 2 raised to the power 199. So my dear friends, this is how I will, now I will wind up